everyone, welcome back. Today in this video, we are going to understand and study the concept of wrongful restraint and wrongful confinement. Section 339 to section 348 deals with wrongful restraint and wrongful confinement. When you look at the word restraint, एक नॉर्मल सा जो आइडिया हमारे दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि हमें रोका जा रहा है. सो like let's suppose someone is simply blocking your way, standing in your way, not allowing you to go in a particular direction. एक जनरल आइडिया यही आ रहा है. एग्जैक्टली यही है wrongful restraint. And in this case you can very clearly see that आप किसको रोक रहे हैं? आप एक ह्यूमन बॉडी को रोक रहे हैं. सो अगेन when you wrongfully restrain a human body, you are committing an offense against that human body. So wrongful restraint and similarly confinement, confine करना, एक घेरे में रखना. आपको मैं कन्फाइन करके एक जगह पे रख दे रही हूँ, आप उस घेरे से बाहर नहीं जा पा रहे. सो दैट इज कन्फाइनमेंट. So again, wrongful restraint and wrongful confinement, both are the offenses against human body. So this part also is covered under IPC in the same chapter, offenses against the human body. Now, I think we all know, for those who doesn't know, let me tell you, there are certain fundamental rights provided to us under Part 3 of Indian Constitution. So these fundamental rights are the rights which cannot be taken away from us, and if it is being taken away, if it is being violated, we have a remedy in the court. We can go directly to the High Court or the Supreme Court when any such right is being violated. They are enforceable. Okay, if it's too much, keep it aside. बस इतना समझिए कि आपको कुछ हक दिए गए हैं और वो हक वायलेट नहीं होने चाहिए, इसका पूरा इंतज़ाम किया गया है. और उस हक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हक है जो कि है आपके पर्सनल लिबर्टी का हक. सो आर्टिकल 21, दोज हु नो प्लीज नोट दिस डाउन. व्हाट इज आर्टिकल 21 एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू these two sections of IPC. If you commit a crime under any of these two head, you are also violating Article 21 of a person. Article 21 आपको right देता है पर्सनल लिबर्टी का, कि आपका पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव नहीं किया जा सकता विदाउट एनी लॉफुल रीजन. ओके, सो एक जनरल वे में हम इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं. देन देयर इज वन मोर आर्टिकल, आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 डील्स विद राइट टू फ्रीडम. सो under that article we have one more right, that is right to freedom of movement. So again, if you commit any of these two offenses, you are violating Article 19 of the person. Clear? Yeah. So let's proceed with first offense, that is wrongful restraint. मैं आपको ये बताना चाहूँगी wrongful restraint और wrongful confinement दो ऐसे offenses जिनमें लोग अक्सर confuse हो जाते हैं और बहुत ही close relation है दोनों का. जैसे एक थोड़ा सा लेसर डिग्री का ऑफेंस है और एक थोड़ा सा हायर डिग्री का ऑफेंस है. इसके बारे में हम और समझेंगे, लेकिन मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन इट. Section 339 provides wrongful restraint का definition. So let me directly come to the ingredients. What does it say? That there should be a voluntarily obstruction. So एक obstruction होना चाहिए, एक रुकावट होनी चाहिए. ठीक है, like someone is doing, when a person is obstructing voluntarily, and उस obstruction से क्या हो रहा है? That the obstruction prevented the complainant from proceeding in any direction.
अब अगर मैं आपका रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हूँ, मैं खड़ी हो गई हूँ कहीं भी किसी एक रास्ते में, मैं यहाँ से किसी को नहीं जाने दूंगी. सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज फुलफिल्ड. वॉलंटरली मैं ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हूँ. Now the next point is, if you come there and you want to go in that particular direction, okay, and जो मैंने obstruction किया हुआ है उसके कारण आप उस direction में नहीं जा पा रहे. Please note here, we are talking about any direction. So एक भी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है मैं बोलूंगी उधर से घूम कर निकल जाओ. इवन इफ आई एम आस्किंग यू उधर से घूम कर निकल जाओ, आई एम स्टिल प्रिवेंटिंग यू to go in this particular direction. So even then this ingredient is fulfilled. Any direction it is. Okay. Now the third thing is that the person or the complainant, मतलब कि इस जो हम example में लेके चल रहे हैं, आप जो हैं, so proceeding must have the right to proceed in the direction concerned. आपके पास राइट होना चाहिए उस डायरेक्शन में जाने का जिस डायरेक्शन को मैंने ऑब्स्ट्रक्ट किया था और जहां आप नहीं जा पाए थे मेरे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण. नाउ लेट्स सपोज आपको भी अच्छे से पता है ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां पे आपको नहीं जाने दिया जाता है, तो वहां पे आपका राइट नहीं होता है जाने का. कैंट एरिया में एंटर नहीं करने दिया जाता है कई बार. बहुत सारे वीआईपी प्लेसेस होते हैं जहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती है. सो एट ऑल दोज डायरेक्शंस जब ब्लॉक किया जाता है, जब ऑब्स्ट्रक्शन किया जाता है और आपको उस डायरेक्शन में प्रोसीड करने नहीं दिया जाता है थ्रू दैट ऑब्स्ट्रक्शन, दैट डजंट अमाउंट टू क्राइम, दैट डजंट अमाउंट टू wrongful restraint. Why? Because at that particular time you are not having that right to proceed in that direction. So overall, if I read this section, whoever, कोई भी voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed. ब्रेक किया था हमने. जो भी voluntarily obstruct करता है किसी person को, ऐसे वो obstruction कैसा है कि वो किसी person को prevent कर रहा है proceed करने में किसी एक direction में जिस डायरेक्शन में उस पर्सन के पास राइट है प्रोसीड करने का. सो वी हैव टू चेक ऑल 3 ingredients in the facts. Okay. Now there is one exception given. Now what does that exception says? If a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct and so obstruct a private way over land or water, then it does not amount to wrongful restraint. मतलब कि अगर एक इंसान गुड फेथ में, अगेन गुड फेथ इंक्लूड्स ड्यू डिलिजेंस एंड अ रीजन टू बिलीव, मैं ऑनेस्ट होनी चाहिए, मैंने ड्यू डिलिजेंस जो बेसिक डिलिजेंस है वो मैंने देखा होना चाहिए और मेरे पास या फिर रीजन टू बिलीव होना चाहिए कुछ ऐसा कि ये जो रास्ता है इस रास्ता को रोकने का हक है मेरे पास, लॉफुल राइट है मेरे पास, चाहे वो रास्ता लैंड पे है या वाटर पे है, बट वो रास्ता प्राइवेट वे होना चाहिए. ओके. सो इफ देयर इज अ प्राइवेट वे और मैं उसको रोक के खड़ी होती हूँ ये सोचकर कि मेरा हक है इस रास्ते को रोकने का. लेट्स सपोज आई थिंक कि ये मेरे घर का एंट्रेंस है एंड आई हैव अ रीजनेबल रीजन टू बिलीव कि हाँ ये मेरा घर है. सो आई एम स्टॉपिंग यू फ्रॉम एंटरिंग माई होम, दैट इज अ प्राइवेट वे. I am stopping you. When I am obstructing in that manner, then it wouldn't be wrongful restraint. Even if वो मेरा हक नहीं था, बट अगर मैं बिलीव रख रही हूँ गुड फेथ में, अगर मैं ये प्रूव कर पाती हूँ तो भी आई वुडेंट. ठीक है, गुड फेथ में बिलीव था ना, तो मैंने क्राइम तो कमिट नहीं किया ना. सो दिस टेक्स अवे द मेंस रिया एलिमेंट. यू गेट इट? दिस एक्टस रिया बट देयर इज नो मेंस रिया बिकॉज आई एम हैविंग a belief that I have a right to obstruct this place. That's why I'm obstructing your way. Okay? So do remember this exception. अब हमें 4 चीजें चेक करनी होगी जब हम फैक्ट्स पे प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे होंगे. एक कि ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है. दूसरा कि वो पर्सन प्रिवेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में जाने से, किसी डायरेक्शन में जाने से, उस ऑब्स्ट्रक्शन से कि नहीं. तीसरा उस पर्सन के पास राइट है कि नहीं प्रोसीड करने का. और चौथा कि क्या जो पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है
वो गुड फेथ में तो नहीं बिलीव करके बैठा कि मेरा राइट है इस रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करने का. सो व्हेन ये 3 एलिमेंट हो और ये एलिमेंट नहीं हो, तभी आप wrongful restraint का आंसर टिक करेंगे. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. चित्रा इज वॉकिंग ऑन अ पब्लिक रोड ऑन विच शी हैज अ राइट टू पास. मिल गया, थर्ड वाला इंग्रेडिएंट हमें ऑलरेडी मिल चुका, राइट है उसका जाने का. राजेश obstructs this path despite knowing that he had no right to stop the path. एक्सेप्शन में जो बोला था वो वाला एलिमेंट खत्म हो गया, ये एक्सेप्शन में तो फॉल नहीं कर रहा है, क्योंकि राजेश ने जब ऑब्स्ट्रक्ट किया तब उसको पता था कि उसके पास कोई राइट नहीं है उस रास्ते को रोकने का. वैसे भी ये पब्लिक रोड थी, उधर बहुत क्लियरली लिखा था प्राइवेट वे. द मोमेंट इट इज रिटन पब्लिक रोड, वैसे ही खत्म हो जा रही है बात. ठीक है, तो एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा है. और उसके अलावा हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट मिल चुका है कि चित्रा के पास राइट टू पास था उस पब्लिक रोड से. दूसरा इंग्रेडिएंट राजेश ने ऑब्स्ट्रक्ट किया, बहुत क्लियरली वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन है. तीसरा, एज चित्रा वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग. तीसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट था, सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन. उस रोड पे जाने से रुकी, चित्रा नहीं जा पाए बिकॉज राजेश ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था. जैसे ही वो प्रिवेंट होती है पास करने से, वैसे ही राजेश हैज कमिटेड wrongful restraint. Okay, he has wrongfully restrained Chitra. Clear with the example how to apply the ingredients and how to check whether it falls under exception or not? Okay, let's proceed. Now, there are certain small things I want to talk about here, because question में जब फैक्ट्स आते हैं तब हम कुछ एजम्पशंस लगा लेते हैं. अब जैसे कि हम सोच रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्ट करना है, तो ऑब्स्ट्रक्ट करना ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने पूरे बैरिकेड लगा दिए हैं या दीवार खड़ी कर दी है. इवन द स्लाइटेस्ट अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन, थोड़ा सा भी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, दैट वुड ऑल्सो अमाउंट टू रॉन्गफुल रिस्ट्रेन. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसी डिग्री है कि आप इतना रिस्ट्रेन करेंगे, इतना ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तभी वो अमाउंट करेगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन पे. प्लस एक और चीज जो ध्यान रखने की है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको फिजिकली ही ऑब्स्ट्रक्ट करना है. वहां पे आप हो सकता है कुछ सामान रख दे या वहां पे सिर्फ एक नोटिस ही बोर्ड लगा दे कि यहाँ जाना मना है सिंपली, तो दैट इज ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्शन, क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन. और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो पर्सन ये कमिट कर रहा है, जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, वो वहां पे प्रेजेंट हो उस समय. ऑल दीज सिनेरियोज वी कीप एज्यूमिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है. इवन द स्लाइटेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन वुड बी डीम्ड टू बी wrongful restraint. Similarly, there is no need of you being physically there. Okay, plus one more thing, ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर मैं आपको सिंपली मुंह से बोल रही हूँ इधर नहीं जाना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी या थप्पड़ मार दूंगी, इवन दैट इज इनफ इफ आई एम नॉट लेटिंग यू गो. ऐसा नहीं कि मेरे को असॉल्ट करना जरूरी है. डू यू रिमेम्बर असॉल्ट? जब आप एक्शन कर रहे हो जो कि एप्रीहेंड कर रहा है सामने वाले पर्सन को कि आप क्रिमिनल फोर्स का यूज करने वाले हो, जेस्चर दे रहे हो. सो इट इज नॉट नेसेसरी ऐसे इमीडिएट जेस्चर हो इन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन की आप क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो. उस पर मेयर यूज ऑफ द वर्ड्स इज इवन इनफ. सो इवन द स्लाइटेस्ट obstruction or even the obstruction just by use of the words that you cannot go there, otherwise you will be arrested. Let's suppose मैंने इतनी सी लाइन बोली, so that is even amounting to obstruction. Okay, now one more thing, it's not necessary कि अच्छा चलो मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछती हूँ कि अगर मैं एक घर की मालिक हूँ और मैंने अपना घर किराए पे चढ़ा दिया है. अब वो पर्सन मुझे पेमेंट नहीं दे रहा है मेरे रेंट की. अब घर तो मेरा ही है. अब मैं क्या करती हूँ, अगले दिन उठ के जब वो बाहर जाता है तब उसके दरवाजे पे है वो मेरा ही घर, लेकिन वो अभी मैंने टेनेंसी पे दिया हुआ है, तब मैंने वो किराए वाले घर के दरवाजे पे एक ऐसा ताला लगा दिया जिससे कि किराएदार जब आएगा वो उसमें एंटर ही नहीं कर पाएगा. सो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, whether there is a wrongful restraint or not?
इट इज अ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन. आप अगर इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इट इज सिंपली वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन कर रही हूँ, मैं ताला लगा दे रही हूँ, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हूँ ताला लगा के, प्रिवेंट हो, जैसे ही वो पर्सन आएगा और नहीं घुस पाएगा अपने घर पे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कमिट हो जाएगा. ठीक है, और ये होते ही कमिट हो जाएगा. और उस पर्सन का राइट है, द टेनेंट हैज द राइट. आप ऐसे उठा के टेनेंट को बाहर नहीं फेंक सकते हो. दिस इज अ प्रॉपर लॉफुल प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो. You can go and ask for the money, you can give them the warning, but you cannot just lock the door and throw the person out. That is not a lawful manner. So basically, उसके पास अभी भी, even when he have not paid you the amount of rent, he still have the right to proceed in that house, in that direction. So again, here is wrongful restraint. And ये इसमें exception में भी fall नहीं करेगा, because every ignorance of law is not an excuse, and every person should know that there is a lawful procedure for ejectment of the tenant. You cannot throw out a person like this. So good faith के अंदर fall भी नहीं करेगा, exception के अंदर बिल्कुल fall नहीं करेगा. ठीक है, इसी तरीके से let's take few more examples. Let's suppose I am a factory owner और मैंने अपने अंडर जो वर्कर्स हैं उनको पैसे नहीं दिए हैं. सो वो क्या कर रहे हैं, आज जब मैं फैक्ट्री से बाहर निकल रही हूँ, वो बाहर खड़े होके जहां से मुझे निकलना है वहां पे गाड़ियां लगा के, एंड दे आर लाइक शाउटिंग, हमें हमारे पैसे दो, हमें हमारे पैसे दो. और वो अपना प्रोटेस्ट करके उसके बाद चले जाते हैं. सो वुड दिस अमाउंट टू रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन तो किया गया है, बट एट द सेम सिनारियो ऑब्स्ट्रक्शन किया गया है प्रोटेस्ट करने के लिए, एंड द मोमेंट द प्रोटेस्ट इज ओवर दे आर लेटिंग द वे. इफ दे वुडंट हैव गिवन द वे और वो रोक कर रखते, देन इट वुड हैव अमाउंटेड टू रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. बट ऑल दे वांटेड टू डू इज टू से देयर थिंग, सो दे stood there, they did their protest and they gave the way. So this is actually proper case which I am discussing. ये वाला एक केस था जिसमें जजमेंट बहुत क्लियर थी कि सिंस रास्ता दे दिया गया था प्रोटेस्ट करने के बाद, इट वाज अ सिंपल प्रोटेस्ट, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को अमाउंट नहीं करता है. ओके, अब कुछ और पॉइंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने दिमाग में रखेंगे व्हेन यू वुड बी अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑन द फैक्ट. ओके, कॉजिंग द ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कुछ करें. अगर आप सामने वाले पर्सन के दिमाग में एक थॉट डाल दे कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे, मतलब इस रास्ते में, इस डायरेक्शन में अगर तुम जाओगे तो वहां पे मैंने फायर आर्म्स के साथ पर्सन छोड़े हुए, तुम्हें शूट कर देंगे. सो इन अ वे यू आर मेकिंग इट अपीयर कि दैट इफ दैट पर्सन वुड प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन इट वुड बी डेंजरस, or maybe you make it dangerous. So if any such scenario is there where you are making it appear that it would be impossible for that person to go that side, it would be very dangerous to go in that direction, or it would be very difficult, or you are actually doing any three things, you are making it happen, तब भी obstruction माना जाएगा. लेकिन अगेन एक इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वो कौन सा है? वो ये है कि उस पर्सन का राइट होना चाहिए प्रोसीड करने का उस डायरेक्शन में. अगर ये पार्ट नहीं हुआ तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं होगा. ओके, अब देखते हैं पनिशमेंट क्या है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की. रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की पनिशमेंट वैसे बहुत कम है. इट इज अ वेरी माइनर ऑफेंस इन अ वे. सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो कि एक्सटेंड करी जा सकती है 1 मंथ तक. मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट इज 1 मंथ एंड फाइन, सॉरी, और या तो 1 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम 1 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट. जब मैं मैक्सिमम बोलती हूँ ये समझ लीजिए मिनिमम कुछ भी हो सकता है. अगर या तो मिनिमम भी यहाँ प्रोवाइडेड होता, सिर्फ मैक्सिमम प्रोवाइडेड है तो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मिनिमम पनिशमेंट क्या देना चाहता है. ऑल्दो बहुत रीजनेबल होना चाहिए, वो ये नहीं कि एकदम नाम के लिए है, और वो रीजनेबल होते भी हैं. ठीक है, या तो इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ तक की, या फिर फाइन जो कि मैक्सिमम 500 रुपए तक का हो सकता है
या फिर बोथ. ओके, सो सेक्शन 341 पनिशमेंट बताता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का. हमने 339 पढ़ लिया, हमने 341 पढ़ लिया. ठीक है. नाउ कमिंग टू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का कंसेप्ट.